Hello, dear aspirants. So, in today's concept decoding, the very beautiful game we are gonna play. The thing is, when you talk about the analytical geometry, when you talk about the any of the like conic or curve, you land up with an equation. So today we are gonna discuss what are the interpretations we can have for that. So when you talk about the general equation of second degree, so today's topic is general equation of second degree. Okay, dear fellows. And in what we are interesting for? We are interested in finding the conditions. Okay. And not like that ki randomly we are playing the maths quiz. Not at all. According to the demand of our exam, whether the civil services or the forest services you are talking about, right? So what happens usually when we study about plane, we land up with one condition. We move for a sphere, we land up with other condition. We move for cone, we land up with other condition. We move for central conicoids, we get some other condition. So when you talk about कि सर आज हम लोग करने वाले क्या हैं, so I will say we will have a clear picture for the general equation of second degree according to this demand. Two direct questions, at least I am saying, and indirectly you can say the necessary stuff. ठीक है? So अच्छा, one more thing I have decided कि when I will be teaching you about this general equation of second degree here in the concept decoding, at the first go, I will tell you what are the consequences of that, so that many of you who just come on the class कि यार मेरे को बस उतना चाहिए जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट करेगा तो हम क्वेश्चन छोड़ देंगे. इफ यू हैव दिस मेंटेलिटी देन फेयर एनफ, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट देखना आपका काम हो जाएगा. इफ यू आर इंटरेस्टेड अनफ कि नहीं यार, अगर सर ने इतने सारे चैप्टर्स को एक अंडर द हेडिंग डाला है तो क्या उसके अंदर ऐसा क्या है. सो वीडियो का लेंथ इट इज ऑफ 20 मिनट्स और 40 मिनट्स डजेंट मैटर एट ऑल. मैटर ऑफ फैक्ट इज यू आर गोना गेट समथिंग वेरी सॉलिड एट योर हैंड. फेयर. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए, तो अगर आप 2D की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला जो कॉन्सेप्ट टॉक है हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर मतलब मिनट्स में ऊपर जाएगा. सो आई होप यू विल कोऑपरेट बिकॉज यू आर गोना गेट समथिंग सॉलिड. सो ऑब्वियसली चले देखना प्यारे बच्चों, व्हेन यू टॉक अबाउट 2D वी हैव एन इक्वेशन. इसको लिखने की भी आदत डाल लीजिए. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w z, नहीं सॉरी 2D में है हम लोग, प्लस d इक्वल्स टू 0. राइट, दिस इज इन केस ऑफ 2D. But what happens if we are interested in 3D because our syllabus is confined to 3D geometry, be it civil services or forest services? तो when you talk about 3D, तो पहले तो ये इक्वेशन ही खुद में याद हो जाए, यही एक टारगेट होता है. राइट, चलो. सो व्हेन यू टॉक अबाउट 3D में जनरल इक्वेशन, व्हाट आई एम राइटिंग दिस, जनरल इक्वेशन of
second degree. Clear? That is the under the umbrella over which we are gonna learn something new today. So when you talk about 3D में देखते रहे ना, here x and y, here we move to z, so I need one more c, so I got ABC here. HXY वाला हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है, so to have that symmetry while remembering the facts, so what I do is this equation starts from byz वाला terms, okay, और byz के साथ में f we have taken, because अपने को याद रखनी होती है ये इक्वेशन, ध्यान रखना. सो नाउ f के बाद में g, y के बाद में z, z के बाद में x, प्लस 2h, z के बाद में x, x के बाद में y, साइक्लिक ऑर्डर में आगे बढ़ते गए. सो इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड डिग्री के टर्म्स, हियर आर 3 टर्म्स, हियर आर 6 टर्म्स इन द सेकेंड डिग्री. लेट्स मूव टू फर्स्ट डिग्री टर्म्स. So 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. If you are feeling कि यार it is more mathematical, सर ज्योमेट्रिकली बताओ तो थोड़ा मजा आए, have patience, है ना. We will play that game for like according to address of demand of exam this UPSC. चलिए अब देखिए ध्यान से, 2D ओके, पर हमारे लिए जो हमारा ऑप्शनल है उसके लिए वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस इक्वेशन. फेयर? चलो, तो जिनको मैंने कहा था कि जो 5 मिनट तक रुकने वाले हैं उनके लिए पहले बोल देते हैं ताकि उनका काम खत्म हो जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी काम कहीं और लगा होता है, वो टाइम नहीं दे पाते. ठीक है, चलो. तो हमें ये जानना होता है कि ये इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ध्यान से देखना. सपोज दैट आउट ऑफ दिस इक्वेशन इफ आई राइट, मुझे लग रहा है इसके होमोजीनियस पार्ट को कहीं अलग ही लिख देते हैं और उसको फिर एज अ रेफरेंस यूज करते रहेंगे. लेट्स से एफ आई राइट इट एज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f/z प्लस 2gzx plus 2hx/y equals to 0. So let's say this is equation 1 and this is equation 2. Now we are interested, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, हम इंटरेस्टेड हैं टू नो अंडर व्हाट कंडीशंस 2 can represent a pair of planes. 2 can represent a pair of planes. Okay, please underline. Means equation of second degree can give you 2 planes in 3D. अब प्लेन के बारे में, लाइन के बारे में ऑलरेडी वी हैड डिकोडेड कॉन्सेप्ट्स, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस. नेक्स्ट, ध्यान से देखना. नाउ वी आर इंटरेस्टेड अंडर व्हाट कंडीशंस 2 और 1 और 2 represent a sphere. For example, okay, we are also interested 1 or 2 represent a cone, then what are those conditions over that? ठीक है, कौन हो गया, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड,
इलिप्सॉइड, अल्टीमेटली कहें तो सेंट्रल कॉनिकॉइड्स. ओके, so we are interested to know about this because we have to learn this for our exam purpose. Clear? Chalo. Let's answer this. So if you talk about under what condition equation 2 represents a plane, तो जिनको केवल रिजल्ट में इंटरेस्ट है आज के इस डिकोडिंग में, तो वो बस ये वाली कंडीशंस याद रख लेंगे और बस आपका काम हो गया, खेलिए आप. दूसरे लोग इसको याद रखने के लिए भी मैं क्या करता हूं, लिखना सिखाता हूं. तो आप डायगोनल्स पर एबीसी लिख लीजिए. क्यों लिखा जाता है, वी विल वर्क ओवर दैट. नॉन डायगोनल्स पर एफ जी एच एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हुए एफ जी एच. सो when you say कि under what condition it represents, so if this holds, then we say कि this equation 2 yes represents a pair of planes. So one direct question kind of done for you. If in your exam they ask under what condition equation 2 represents a pair of planes, what you will ultimately cross check? You will ultimately cross check कि whether this determinant value whose diagonal entries are ABC, FGH non-diagonals के लिए, this determinant value comes out to be 0, we say this represents, equation 2 represents a pair of planes. Let's come over the other point now. So if you talk about a sphere, what we say कि the equation x square plus y square plus z square means a b c must be 1 plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. This equation, तो ये है क्या, इसी का तो एक स्पेशल फॉर्म है. तो दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर. ठीक है, और इस स्फीयर का सेंटर जो होगा वो मिलेगा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू. इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी. If you are more interested in getting depth of these points, stay tuned in the lecture, you will get the answers. चलिए, let's come here over the cone. So cone के केस में we have very beautiful interpretations. So here let's write those 1 and 2. Number first, equation 2 always represents a cone provided that, let's say if you denote this by determinant A, obviously determinant of A must be non-zero, because if it happens to be 0, then this will represent a pair of planes. So homogeneous equation of second degree always represents a cone. Not only it represents the cone, this always represents a cone with vertex at origin. So very beautiful. If you observe your PYQs, you will find you have n number of questions out of this concept. But when we will be trying to explore that, then you will come to know that if you are trying to find an equation of cone which cuts all three coordinate axes or passes through the coordinate axis, then what can be the possible equation of that cone? fyz plus gzx plus hxy equals to 0 is representing a cone. So about this cone, what particulars you can talk about?
So that is why I am saying that this is a game of equation of second degree. Under what conditions? The second is what? Conditions are what? When one represents a cone. So if you are interested only in answer, I can write this answer here. So that is A, B, C, D. U, V, W. Okay? U, V, W. F, G, H. F, G, H. This determinant should be 0. Then the general equation of second degree, that is equation number 1, will represent a cone. So how to find the vertex of that cone? How we can play with this general equation of second degree? That is the purpose of this game today. Okay? So are you interested in that? बाकी सेंट्रल कॉनिकॉइड्स के लिए क्या होगा? The equation of the form ax square plus by square plus cz square, this is called as central conicoids. Okay, so based on ABC difference, we got ellipsoid, paraboloid, hyperbolic paraboloid, elliptic paraboloid, hyperboloid of 1 seat, hyperboloid of 2 seats. So if you are more interested कि सर ये hyperboloid of 1 seat, 2 seats कभी विजुअलाइज नहीं होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट डिकोड में इसको डिमॉन्स्ट्रेट क्यों ना कर दिया जाए? बिकॉज इंटीग्रल कैलकुलस की जब हम बात करते हैं तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आप देखेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन में आपका बैंड बजा के रखता है, वेक्टर कैलकुलस वाले की जब बात करेंगे आपका बैंड बजा के रखता है. यही चीजें तो है ना जो दुख देती है. से यस और नो? So here in this concept talking, we are just trying to explore all those ways which are the reasons for our pain, which are the reasons for our psychological tussle. Right or not? So persons who were only interested in the results, they can have this, they can take the screenshot if permitted. नहीं तो अब हम जाएंगे इन सब का गेम खेलने कि ऐसा क्यों होता है. What is the logic behind that? राइट? तो 20 मिनट के वीडियो बनाने के चक्कर में उसका पूरा का पूरा ग्रिप नहीं खोएंगे, क्योंकि जो मैं सिखाने जा रहा हूं, विश्वास मानिए, यू विल फील द जॉय एक्चुअली. चल आई प्रोसीड नाउ. लिखना है किसी को तो आप लिख सकते हैं इसको. ठीक है, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट एज वेल. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एक एक केस पर बात करेंगे, है ना? तो मैं केस बोल दूं. लेट्स से दिस इज द केस 1, दिस इज द ईसियर 1, केस 2, लेट्स से दिस इज द केस 3 एंड दैट इज द केस 4. तो हम केस 1 मेरा काफी इंटरेस्टिंग है, तो पहले उसकी बात करेंगे, क्योंकि वो जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो इनडायरेक्टली भी हेल्प करने वाली हैं. चलिए, सो लेट्स डिस्कस अवर केस नंबर 1. बोली जाए केस नंबर 1 की डायरी. चलो ध्यान से देखेंगे सब लोग. अच्छा, प्लेन का इक्वेशन सबको पता है? उसमें तो किसी को कोई तनाव तो नहीं है? बता देना भाई. ax plus by plus cz plus d equals to 0. lx plus my plus nz equals to p. Normal form, general equation, and intercept form is given like. So this we know about plane. Right or not? DRS and all बात करेंगे उसके बारे में. अभी देखिए हमारा टारगेट क्या है, और इसी बहाने कॉन्सेप्ट टॉक तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आप मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखना सीख रहे हैं हमारे साथ, आप डेफिनेशंस को डिकोड करना सीख रहे हैं. ठीक है, चलिए. तो टारगेट क्या है प्यारे बच्चों हमारा? अंडर व्हाट कंडीशंस
the equation under what conditions the equation ax square plus by square plus cz square plus 2f by z plus 2gzx plus 2hx by equals to 0, this represents a cone. तो नंबरिंग हम वैसे ही लेके चलेंगे जैसा पीछे किया था. तो let's have this as 2, not an issue at all. Under what condition this equation represents a pair of planes? तो क्यों हमें केवल ए बी सी एफ जी एच से मतलब है? क्या मैथमेटिकल लॉजिक है उसके पीछे? लेट्स ट्राई टू गेट. चलिए अगले 5 मिनट धैर्य से सुनना, कुछ और कनेक्टिविटी करूंगा. देखना, मैथमेटिक्स लिखना सीखिए. अजम्पशन बेस्ड प्रूफ सिखाएं आपको कि हम कुछ एज्यूम करके चलते हैं और इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि वेदर अवर अजम्पशन वाज राइट और रॉन्ग, है कि नहीं. सो लेट इफ इक्वेशन 2 represents a pair of planes, है ना, and let those are given by, हम मान लेते हैं कि वो जो दो प्लेन हैं those are given by L1x plus M1y plus N1z equals to P1, L2x plus M2y plus N2z equals to P2. So let's say this is 3, this is 4. अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व किया, अगर आपने PYQs देखे होंगे यूपीएससी में, सीएसई मेंस 2023, देयर वाज अ क्वेश्चन, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2023 में था. L1x प्रोडक्ट आई गेस 21 में है. I'm sorry if this goes wrong, either 21 or 23. प्लीज क्रॉस चेक. बाकी मंतव्य समझिए. ठीक है. वहां पर क्या है कि अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं और उनका जॉइंट इक्वेशन हमें दे रखा है, तो हाउ टू राइट दैट जॉइंट इक्वेशन, दिस लॉजिक इज यूज्ड इन दैट क्वेश्चन और इन दोज कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन, राइट. सो दैट आई हैव बीन टेलिंग यू हियर इज, so joint form of 3 and 4 is given by, ध्यान से देखना, is given by 3 into 4. So what you will have, L1x plus M1 by, यहां पे स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको कई जगह इनडायरेक्टली हेल्प करेगा. इनडायरेक्टली इट विल बी हेल्पफुल. ठीक है, चलो. L1x प्लस M1y प्लस N1z, उधर में क्या है, P1 P2, सो माइनस P1 यहां लिख लें, इक्वल्स टू 0 कर देंगे. दूसरे वाले में L2x प्लस M2y प्लस N2z माइनस P2 इक्वल्स टू 0. लेट्स से दिस इज द what we are trying to do here is, we are assuming कि let if 2 represents a pair of planes, means those pair of planes का joint form is equation 2. बोलिए, इसका मतलब क्या है? joint equation is 2. That is the literal meaning of that. Mathematically दो प्लेन्स का जॉइंट इक्वेशन क्या निकल कर आ रहा है, ये. तो मीन्स दैट इज 2 and 5 must be similar or you can say same. अगर ऐसा है तो फिर कंपोनेंट वाइज उनके कोफिशिएंट्स विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन और नॉट. एक्स का कोफिशिएंट इक्वेशन 2,
इक्वेशन 5 में, पाई का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 इक्वेशन 5 में। से यस और नो? अरे भाई से यस और नो। सो व्हाट इज गोना हैपन हियर? अभी हम क्या करते हैं, जरा इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो ज्यादा मजा आएगा अब। ठीक है, लिखिए जरा। L1 L2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, L1 M2 एक्स बाई L1 N2 Z एक्स, आई एम सॉरी, माइनस L1 P2 एक्स, पहले वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस अब इस वाले कंपोनेंट का सारे के साथ में मल्टीप्लाई, M1 L2 एक्स बाई प्लस M1 M2 बाई स्क्वायर। एक सिमेट्री नजर आएगी। और होता क्या है पता क्या, अब इसी चीज को मैं पीपीटी फॉर्म में लाता और आपको दिखा देता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि एक टीचर के तौर पर वो ठीक है, लेकिन जब मैं खुद को एक स्टूडेंट की जगह रखकर सोचूं, until unless I don't practice this writing on the paper, until unless I don't examine myself कि at which step I can be struck in mathematics optional, you can do nothing. And if you are committing this mistake कि जैसे फिलॉसफी पढ़ा जाता है ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स आप रिवाइज करते हैं, तो आज आंख कान खोल लीजिए, दोबारा नहीं कहूंगा फिर, आप गलत रास्ते पर हैं। मैथ्स इज बाय डूइंग डूइंग डूइंग। ठीक है, जितना जल्दी हो समझ जाइए, क्योंकि आप लिखते टाइम आपको लगेगा कि अच्छा सिमेट्री बन रही है। ऐसे तो इतना लंबा एक्सप्रेशन आप देखेंगे, साइकोलॉजिकली खुद से पूछ कर देखिए, आपको ऐसा लगेगा यार इतना कॉम्बरसम एक्सप्रेशन कौन याद रखता होगा, कहीं थोड़ी सी गलती हो गई तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, ये तो बहुत हेक्टिक है। तो कॉन्सेप्ट डिकोडिंग इज दिस, राइट। अब आप देखिए L1 L2 M1 M2 N1 N2 Z स्क्वायर अपने आप चमकेगा, सिमेट्री अपने आप दिखाई देगी। चलो M1 M2 बाई स्क्वायर प्लस M1 N2 बाई Z, ठीक है, फिर माइनस M1 P2 बाई, द नेक्स्ट टर्म इज गोना बी फॉर N1, तो प्लस N1 L2x प्लस N1 M2 x नहीं ZX, Z बाई Z लिख लें तो बोलने में भी अपने को आदत में जो लगा हुआ है वही रहेगा, प्लस N1 N2 Z स्क्वायर माइनस N1 P2 Z। अब माइनस P1 वाला कर ले तो माइनस P1 L2x राइट, एंड दिस होल गोज टू 0। अब आप इक्वेशन 2 में क्या कीजिए, कोएफिशिएंट्स, क्यों, क्योंकि सिमिलर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स बाई जेड जेड एक्स, इनको ऑब्जर्व कीजिए इस एक्सप्रेशन में, उनको ऑब्जर्व कीजिए इस एक्सप्रेशन में, पेयर। तो अगर यहां पर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आप ऑब्जर्व करें तो ड्यू टू सिमिलैरिटी वी मस्ट हैव L1 L2 अपॉन A, दिस शुड बी द सेम प्रोपोर्शन, राइट। तो L1 L2 अपॉन A, दिस इज इक्वल्स टू बाई स्क्वायर वाला M1 M2 अपॉन B, दिस इज इक्वल्स टू N1 N2 अपॉन C। अब यहां पर देखिए बाई Z का कोएफिशिएंट, और इस एक्सप्रेशन में बाई Z का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है जरा ऑब्जर्व कीजिए, M1 N2 प्लस N1 M2। देखिए कितना प्यारा सा एक्सप्रेशन मिलेगा, M1 N2 प्लस N1 M2 डिवाइडेड बाई 2
एफ। ये चीजें जिस दिन आपने लिखना शुरू कर दी ना, उस दिन आपको ये मैथ्स ऑप्शनल का जो फियर है ना, यकीन मानिए पता नहीं चलेगा कहां गया। ठीक है, पता नहीं चलेगा कहां गया ये। ओके, अदर टर्म देखिए, बाई जेड हो गया जेड एक्स। जेड एक्स के कॉफिशियंट्स देखिए यहां पर L1 N2, अगला वाला अपने आप दिखेगा N1 L2। ठीक है, N1 L2 ZX। सो कहां गया, L1 N2 प्लस N1 L2 अपॉन 2G। अब LMN के साथ में वर्क किया, ZX वाला कॉफिशियंट देखिए, ZX हो गया ना, HX सॉरी X बाई L1 M2 प्लस M1 L2 डिवाइडेड बाई 2H। सारे कॉफिशियंट्स कंपेयर हो गए, बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना भाई, कुछ बचा है क्या? कांस्टेंट वाले कहां जाएंगे? मन करे तो लिखिए। अब आपके पास कहेंगे कि सर इनको लिखकर होगा क्या, इनसे फायदा क्या होता है? तो आज इस कॉन्सेप्ट डिकोड में मैं आपको यह भी समझाने वाला हूं कि इनसे फायदा क्या होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं L1 L2 अपॉन A इक्वल्स टू कोई पैरामीटर ले लिया K, सो L1 L2 इन टर्म्स ऑफ K मिल जाएगा, M1 M2 इन टर्म्स ऑफ K मिल जाएगा, N1 N2 इन टर्म्स ऑफ K मिल जाएगा, M1 N2 प्लस N1 M2 वो मिल जाएगा। सिमिलरली अदर टर्म्स मिल जाएंगे मुझे। और इसी बहाने हमारी ये आदत भी लग जाएगी कि जनरलाइज्ड फॉर्म में चीजों को लिखने में कोई दुख नहीं होता है, केवल आपका साइक मैटर करता है, आप कैसे चीजों को देख रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है, चलिए बोर्ड पर आइए सारे लोग, ध्यान से देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हमने जो L1 M1 L2 M2 ये सब लिए हैं, ये तो हमारी तरफ से है ना। सो दिस गिव्स, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट, लीनियर अलजेब्रा में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम पढ़ते हैं, राइट और नॉट? सो व्हाट हैपन्स फॉर दिस सिस्टम टू हैव सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस किसके लिए? L1 M1 N1, L2 M2 N2 और क्या लिया है, P1 एंड P2। द नेसेसरी कंडीशन, the necessary condition is A B C। जिन्होंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, बाकी इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड कि नहीं सर बहुत मजा आ रहा है, अब अपने को इनके प्रूफ्स मतलब वेल सेटल्ड वेल फ्रेम्ड वे में चाहिए, सो यू कैन आस्क फॉर दोज पीडीएफ्स, वी विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। हियर वी आर प्लेइंग द गेम कि कैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आपके लिए एक मजेदार खेल है। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्लियर है अभी? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में तो अभी मैं नहीं गया, जस्ट उनको टर्म्स को मैनेज करके द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स जो अपने पास होता है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू वी नीड 0, राइट? So in that manner we have worked till now. If you are more interested, फिर तो गेम बढ़ता जाएगा यार, है ना? नहीं, कॉन्सेप्ट डिकोडिंग हम कर ही रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का डिकोडिंग होगा ही। So if you are struggling here, do let us know, we will definitely go into that. Fair? तो यहां से एक आइडिया ये लगा कि why the condition comes like this,
बोलो हाँ या ना। और ये कॉन्सेप्ट डिकोडिंग सीरीज हमने ऐसे ही स्टार्ट नहीं किया। मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं वो ये है कि यार यूपीएससी जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है वो इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हमें जिस तरह से ट्रेन किया गया है या यूपीएससी फील्ड में जैसे ट्रेन किया जाता है इस ऑप्शनल की कोचिंग में, तो हमारा ये कि बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, वही स्टडी है हमारी, राइट? बट दैट कैन हैम्पर योर परफॉर्मेंस इन कमिंग अटेम्प्ट्स. So here with this concept decoding, I'm trying to develop those traits in you as well. So persons who are really interested, they will be definitely enjoying this, है ना? So यहाँ पर अगर आप इस सिस्टम से यहाँ तक आ गए हैं, अगर सिस्टम्स का ज्ञान आपको थोड़ा है तो डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई. अगर नहीं आ पाए हैं तो डोंट फॉरगेट टू आस्क. ठीक है? चलिए, I'm sorry. तो एक तो हो गया ये प्लेन वाली कहानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f/z प्लस 2z/x प्लस 2hx/y इक्वल्स टू 0. इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ प्लेन्स अंडर व्हाट कंडीशंस, राइट? कोई दिक्कत? अगला स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन. मैंने पहले ही कहा था ये वाला लेक्चर थोड़ा सा एक लेक्चर टाइप का होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जितनी चीजें हमने स्टार्टिंग लेक्चर में कही सारे को डिकोड कर दूं मैं. ठीक है? इजाजत है? चलिए, सो लेट्स से वी आर डीलिंग नाउ अ केस. देखना ध्यान से. द केस इज व्हाट? The homogeneous equation, the homogeneous equation of second degree क्या है वो बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा आपको. The homogeneous equation of second degree represents a cone with vertex at origin. कंफ्यूज नहीं करेंगे. प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन्स. क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ प्लेन. उसको कैसे किल करना है आज देखेंगे इस बात को. ठीक है? चलिए, अभी तो मैंने इतना स्टेटमेंट दिया है, इसके साथ में खेलना शुरू करते हैं अब. हाउ मेनी ऑफ यू नो द कोन? कोन इज वॉट? टेल मी. पानी पी लेता हूं ना. What is the like? What do you mean by cone? 90% of you might be thinking about right circular cone, right? hmm? चलो, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. देखिए आज आपको खिलाते हैं फिर से. तो व्हेन यू टॉक अबाउट कोन, बेसिकली कोन इज अ सरफेस. ध्यान से सुनते रहना मेरे बात को. कोन इज अ सरफेस which is generated by a variable line. इससे variable line passing through a fixed point. I'm sorry. Passing through a fixed point with a guiding curve. एक गाइडिंग कर्व होता है इसका. ठीक है? अब सपोज दैट दिस इज द गाइडिंग कर्व. तो इस टाइप की इक्वेशन से ये वेरिएबल जो स्ट्रेट लाइन से हैं सारे के सारे इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो ये जो सरफेस जनरेट होगी दैट विल बी अ कोन. तो आप कहेंगे सर जो हमने पढ़ा था वो क्या था?
वो एक स्पेशल टाइप का कोन था जिसको बोला जाता है राइट सर्कुलर कोन। क्लियर है? तो कोन के बारे में जब अलग से बात कर रहे थे उसमें, तो उसमें आपको ये चीज दिखाई देगी कि व्हाट इज एक्चुअली कोन, राइट? तो उसका गाइडिंग कर्व सर्किल होता है बेसिकली। चलिए, हम यहां कोन के बारे में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं कर रहे हैं कि वो क्या है। बस जनरेटिंग लाइन, ये जो वेरिएबल लाइन है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। दिस वेरिएबल लाइन इज कॉल्ड जनरेटिंग लाइन, ठीक है, और जनरेटर ऑफ दिस कोन। फेयर? चलो, मैथमेटिकली अगर आप थोड़ा सा और कहें तो दिस लाइन कंप्लीटली लाइज ऑन कोन। किसी भी सरफेस की जनरेटिंग लाइन के लिए स्टार मार्क कर लीजिए, 100% की बात बोल दी है आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमारे पास ये है टारगेट कि द इक्वेशन होमोजीनियस, दैट इज टू, जो हमने ले रखा है ना, इक्वेशन टू, पीछे जो इक्वेशन टू है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f/z प्लस 2gzx प्लस 2hx बाई इक्वल्स टू 0। अब देखेगा कि हम क्या करेंगे, वही एजम्पशन बेस्ड चलेंगे। लेट अस एज्यूम, क्या, लेट इफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2f/z प्लस 2gzx प्लस 2hx बाई इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ कोन, ध्यान से देखना, जिसका कि वर्टेक्स है ओरिजिन, मींस 0 0 0। इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन। ओके, so here any arbitrary vertex alpha beta gamma, in this case we have the cone as vertex at, cone का vertex at origin। fair? कोई दिक्कत, कोई तनाव नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये मान लिया, अब अगर हमारा इंटरप्रिटेशन गलत होगा, या वी विल गेट सम रेस्ट्रिक्शंस ओवर दैट, वी विल गेट सम रेस्ट्रिक्शंस ओवर दैट, लेट्स ट्राई टू फाइंड। चलो तो देखिएगा, व्हेन आई डिकोडेड द स्ट्रेट लाइन, दिस फंडामेंटल, दिस कॉन्सेप्ट आई क्लियरली स्टेटेड कि वेन एवर यू वॉन्ट टू राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली किस पर खेलना है, जनरेटर पर। सिंस वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, सो लेट्स राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, right or not? So if you are interested in an arbitrary point on line, कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, 0 है बीटा का वैल्यू, गामा प्लस एन आर, मीन्स एक्स का वैल्यू एल आर, बाई का वैल्यू एम आर, जेड का वैल्यू एन आर। सो दिस इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन लाइन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट 0 0, जहां से लाइन पास कराई आपने। क्लियर बात है? सिंस, ध्यान से देखिएगा, सिंस दिस लाइन इज जनरेटिंग लाइन, वी आर कंसीडरिंग एज, this we are considering as a generating line, so lies completely on, so lies completely on the surface 2। completely means no matter r का वैल्यू what I take, means एक लाइन के ऊपर
सपोज दैट यहां पे पॉइंट लिया, सो दिस इज द डिस्टेंस. इफ आई टेक दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, this is the point, then this is the r, means no matter r का value what I take, that equation should be satisfied. Say yes or no. थोड़ा सा 5-7 मिनट और मजा आएगा आपको आज एकदम, क्योंकि यहां पर आप एक चीज नहीं सीख रहे हैं, गेम तो चल ही रहा है, उसके साथ में कई सारे क्वेश्चंस टैकल करने की कला सीख रहे हैं आप मैथ्स ऑप्शनल में. एंड दिस कम्स ऑन when you indulge in your subject deeply, rootly. ठीक है, चलो, तो लेट्स सेटिस्फाई LR MR, x की जगह LR MR, तो अपने पास मिल जाएगा a इंटू LR का स्क्वायर. ये इक्वेशन लिखना सीखेंगे, आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम में. बाई z, तो mn r स्क्वायर प्लस 2zx. अच्छा, बाई z था, तो बाई z zx ln r स्क्वायर प्लस 2h. ध्यान से देखिएगा, x बाई क्या है, lm r स्क्वायर, एंड दैट गोज टू 0. बिना किसी तनाव लिए हुए. अब आप देखिए, इफ आई वुड हैव टेकन, ध्यान से देखिएगा सब लोग, इफ आई वुड हैव, स्टार्ट तो मैंने यहां से किया, अब मैं यहां पे आपको गेम खिलाना चाह रहा हूं. ठीक, द गेम इज, suppose that I have the equation as general equation of second degree. ठीक है, what I am saying, I am taking a general equation of second degree. 2f by z plus 2zx plus 2hx by plus 2ul plus 2vm. अरे यार क्या, I'm literally sorry, 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. Some people, अब देखो मैंने इस चीज को यहां से क्यों स्टार्ट किया, फिर ये क्यों उठाया, what is the logic behind that? Because in your CSE or forest services, either you have the question out of this or you can have the question out of this. Without proving this, you cannot tackle this question. Did you get my point? किसी को कोई दिक्कत? Anyone? चलो. अभी बहुत मजा आने वाला है, बहुत, believe me. So this is AL square plus BM square plus CN square plus 2FMN plus 2ZLN plus 2HLM r square we have taken as common. So what do you say, कि if this you are representing by a small f of x by z, so this you can say कि if स्टार मार्क कर लीजिए, that is an exam point for you. तनाव मत लीजिए कि सर अभी तक आपने कौन नहीं दिखाया, कौन का तो अभी बैंड बजा देंगे. Thing is, we are developing an art. We are trying to find कि when we write the mathematical language, what are those interpretations which we can have here. Clear है? Now what I suggest you here, suppose that if you have taken this point here and, ध्यान से देखना यार, पूरा तो गेम करवा दिया है. Suppose that if this would have been here, ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को इस सरफेस पर सेटिस्फाई कराऊंगा, तो ऑब्वियसली सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टेक्स, सो हियर डी द कांस्टेंट टर्म विल बी कमिंग आउट एज 0. अभी वी विल हैव द टर्म्स लाइक
AL स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस 2FMN प्लस 2GNL प्लस 2HMN का कॉफिशियंट एज R स्क्वायर, राइट। प्लस अब अपने पास बचा XYZ वाला टर्म, तो दिस विल बी 2UL प्लस 2VM प्लस 2WN आउटसाइड R। कांस्टेंट टर्म इज ऑलरेडी बिकमिंग एज 0। ध्यान से देखना कि आज देखिए, बी ऑन द बोर्ड प्लीज। जब मैंने आपसे कहा, अच्छा क्या कोई कहेगा कि क्या अब चमक रहा है उसको कि मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री और होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री को साथ में लेकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? सॉरी, कैन एनीवन? दिस लाइन, if x upon L equals y upon M equals z upon N is the generating line, then this line lies completely on the surface. Means no matter for which value of R I am talking about, that point must be on the surface itself. So using this condition here, we must have two things. What? AL square plus BM square plus CN square plus 2FMN plus 2GNL plus 2HMN equals to 0. Here 2UL plus 2VM plus 2WN, because this equation must be an identity. Identity means no matter R का what value I take, the equation का LHS must be equals to RHS, और RHS is 0. So RHS is 0 always, LHS will also be 0 always. It is possible only when I take these two separately as 0. Please say yes or no. कोई दिक्कत है तो चिल्लाइए. If you have any issue, please raise your voice. अब देखिए, वी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. लेक्चर यार थोड़ा सा ऊपर गया है, कोई बात नहीं, इसको डबल डिकोडेड फॉर्म बोल देंगे. सिंस LMN आर आर्बिट्रेरी, LMN तो हमने लिए थे ना, मुझे थोड़ी दिए गए. सो टू गेट लोकस और इक्वेशन, replace LMN in terms of x by z. So if you replace from here, you will get LR equals, तो L equals x upon R. तो इसकी जगह आपको मिल जाएगा AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर. R स्क्वायर नीचे आएगा, वो उधर कॉमन में जाके 0 हो जाएगा RHS में. 2F by Z plus 2ZZX plus 2HX by equals to 0. And the other form here, 2 को कॉमन ले लो. So one form is this, other form is ux plus by plus wz equals to 0. This is the equation of a plane, this is the equation of a cone. तो आज से पहले जब आपने ये रट लिया था कि यार प्रोवाइडेड दैट कि वो पेयर ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट ना करे, आज उसका मतलब समझ में आया कि नहीं? सिंस वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि वो कौन होगा, कौन के लिए दिस प्लेन वाला पॉसिबिलिटी इज रिजेक्टेड. सो व्हाट द पॉसिबिलिटी यू हैव रिमेन्ड विथ? ओनली विथ दिस इक्वेशन. चेक इट आउट. So means required equation of cone is given by this, and which is the homogeneous equation of second degree. Please say yes or no. कोई डाउट होगा तो कहिए. आराम से इस लेक्चर को मैं 5-7 मिनट और ऊपर लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे चीजें समराइज करनी है, अब बीच में नहीं छोड़ूंगा. किसी को दिक्कत है तो देखिए जरा. Shall I proceed? चलो.
अब हमें ये जानना है, क्या जान लिया हमने, देखना ध्यान से, अगले केस पर जाने वाला हूं मैं जानना चाहता हूं अंडर व्हाट कंडीशन द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, अभी तक तो होमोजीनियस की बात हुई, राइट, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स अ कोन। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को हम 1 से रिप्रेजेंट कर चुके हैं पीछे, और हमारे पास एज ए नॉलेज बेस अब क्या आ चुका है कि अंडर व्हाट कंडीशन द जनरल इक्वेशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ प्लेन्स, एंड if it is not the pair of planes then homogeneous equation of second degree क्या कहेंगे। कंटेंट अपने पास क्या है, ये तो टारगेट है, राइट। कंटेंट अपने पास है कि होमोजीनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इतना बार लिखा है कि आज के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस always represents a cone with vertex at origin, प्रोवाइडेड क्या है आपके पास, प्रोवाइडेड इज कि वो पेयर ऑफ प्लेन्स पे ना जा रहा हो, ठीक है। चलो, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ऐसा कब करेगा ये जानना है मुझे, ठीक। लॉजिक देखना कितना ब्यूटीफुल होता है यहां पर। जनरल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं आप, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा आपको यहां पर मजा आने वाला है, क्योंकि इतने सारे दुख दूर हो जाएंगे आज आपके मैथमेटिक्स ऑप्शनल में इस पर्टिकुलर बेस पर, और आपको यह समझ आएगा कि आज का गेम कितना महत्वपूर्ण था। लेट्स से दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है। मैं मान लेता हूं लेट इफ वन रिप्रेजेंट्स, एज्यूम कर लिया ना, लेट इफ वन रिप्रेजेंट्स अ कोन विथ वर्टेक्स एट एनी पॉइंट, लेट से अल्फा बीटा गामा, ठीक है। Let if one represents a cone with any vertex at alpha, beta, gamma. अब हम क्या करेंगे, अब हम बजाएंगे इसका बैंड। देखिए, नाउ इफ वी शिफ्ट द origin 0 0 0 टू अल्फा बीटा गामा, क्या किया मैंने, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। अब अल्फा बीटा गामा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, आई एम सेइंग विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, यू कैन रिप्लेस एक्स बाई एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस अल्फा, डजन हैम्पर, ठीक है। तो इफ वी शिफ्ट दिस ओरिजिन, तो अपने को 1 कन्वर्टेड टू किस में, 1 कन्वर्टेड टू a इंटू, अगेन आई एम सेइंग यहां x प्लस माइनस अल्फा यू कैन राइट डिपेंडिंग ऑन द अल्फा, पॉजिटिव नेगेटिव, b इंटू बाई प्लस बीटा का होल स्क्वायर, c इंटू जेड प्लस गामा का होल स्क्वायर, 2f बाई जेड, बाई प्लस बीटा, z प्लस गामा, 2z, z प्लस गामा, x प्लस अल्फा प्लस 2h, जस्ट ध्यान रखना 5 मिनट और बस, 3-4 मिनट्स, 2hx बाई
2u(x plus alpha), 2v(y plus beta), 2w(z plus gamma) plus d equals to 0। अब जो 3 है इसका वर्टेक्स कहां पहुंचा दिया आपने? बोलिए। लेट्स से दिस इज 3। क्लियरली 3 is a cone with vertex at origin now. So 3 must be homogeneous equation of second degree, because what the knowledge we carry now, कि if you are writing the equation of a cone which has vertex at origin, then if you are writing the equation of a cone which has vertex at origin, then it's represented by homogeneous equation of second degree, that is written this. So means क्या होना चाहिए? फर्स्ट डिग्री के टर्म्स का बाजा बजना चाहिए, कांस्टेंट टर्म का बाजा बजना चाहिए। तो फर्स्ट डिग्री टर्म मींस एक्स का कॉफिशिएंट, तो फर्स्ट डिग्री टर्म्स, बस हो गया काम। एंड कांस्टेंट टर्म ऑल मस्ट बी 0, बिकॉज होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा अभी ये सेकेंड डिग्री की। तो एक्स के कॉफिशिएंट बता दो मुझे बहुत फटाफट। 2a अल्फा एक्स यहां से मिलेगा 2a अल्फा, ठीक है। 2v बीटा, 2c गामा, यहां से x का कॉफिशिएंट चाहिए, यहां से x का कॉफिशिएंट मिलेगा मुझे 2g गामा इंटू एक्स, यहां से मिलेगा 2h बीटा, राइट और नॉट? x का कॉफिशिएंट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहां से मुझे मिलेगा 2u, और कोई x का कॉफिशिएंट है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। दैट मस्ट बी 0। सिमिलरली बाई का कॉफिशिएंट पे जाएंगे तो ये बाई वाला कहां से आ गया? 2b बीटा इसमें नहीं आएगा, आई एम सॉरी, क्योंकि ये तो बाई वाला तो 0 रहेगा ना वहां। 2a अल्फा प्लस 2g सब, कॉफिशिएंट x लिख दिया, कॉफिशिएंट बाई, तो यहां से 2b बीटा प्लस 2f बाई गामा, राइट, प्लस बाई कहां गया? ये 2h बाई अल्फा, तो बाई तो हटा ही दे, कहां गया? 2f गामा प्लस 2h अल्फा बाई का कंपोनेंट, यहां से 2v, दैट मस्ट बी 0। सिमिलरली कॉफिशिएंट ऑफ z, कॉफिशिएंट ऑफ z क्या मिलेगा? सी जेड स्क्वायर, तो 2 गामा z यहां से, तो 2c गामा प्लस z का कॉफिशिएंट यहां से, तो अपने को मिल जाएगा बीटा z, 2f बीटा, फिर यहां से z का कॉफिशिएंट प्लस का है, सो 2g अल्फा प्लस, फिर अगला z का कॉफिशिएंट कहां पे मिलेगा जाके? 2w, दैट गोज टू 0। एक इक्वेशन और बचा है अभी, कांस्टेंट टर्म वाला। कांस्टेंट टर्म यहां पे होगा a अल्फा स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म देखिए a अल्फा स्क्वायर, यहां से b बीटा स्क्वायर, c गामा स्क्वायर, यहां से अगर आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म 2f बीटा गामा, 2f बीटा गामा, 2g गामा अल्फा, 2h अल्फा बीटा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2
W gamma plus D, that must be 0. अल्फा बीटा गामा वर्टेक्स ऑफ द कोन है और होमोजीनियस है, तो स्मॉल f ऑफ अल्फा बीटा गामा दैट मस्ट बी 0 फॉर अस, राइट और नॉट? तो अल्टीमेटली द कांस्टेंट वाला टर्म अपने पास बचेगा, प्लीज से यस और नो, आराम से देख लीजिए, दोबारा सुन लीजिए रिमाइंड करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने पास हो गई हैं 4 इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आप यहां से किसको एलिमिनेट कर देंगे? अल्फा बीटा गामा, और लास्ट वाला है आपके पास कांस्टेंट टर्म। तो आप देख लीजिए, तो टू हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी मस्ट हैव दिस डिटर्मिनेंट एज 0। अगर आपको कोई तनाव है तो पूछिए। दिस इज द कोफिशिएंट, किसका डिटर्मिनेंट है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स of alpha beta gamma and the constant term in this system of linear equations. So क्या कंडीशन मिली अपने को कि द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कहां गया? 1 that will represents a cone if this condition is satisfied. बोलो हाँ या ना? Moreover, if you analyze your PYQs, you will find they ask some questions finding the vertex of a cone. तो वो भी कोई झूठ मूठ का तमाशा होता है। अगर आप इसको फाई लिख रहे हैं तो आप होमोजीनियस बताने के बाद डेवर फाई ओवर डेवर अल्फा, डेवर फाई ओवर डेवर बीटा, डेवर फाई ओवर डेवर गामा इक्वल्स टू, आफ्टर मेकिंग इट होमोजीनियस by introducing a new variable, you solve those equations. So those equations are nothing but these conditions only which you are getting these. तो जैसे रटना है आपको रट सकते हैं, लेकिन मैं रटने की सलाह कभी नहीं देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आज ही देखिए हमने 1 घंटे कुछ डाला, लेकिन इस 1 घंटे का जो आपका आउटपुट है वो आप खुद से पूछ लीजिए कि आज आपने कितनी चीजों को एक्सप्लोर किया है। आपको यह विश्वास हो चलेगा कि नहीं यार, अगर एक रिदम में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनता है ना, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का गेम समझ में आया आपको? कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, एनीवन? चलिए, तो आई होप आज का सेशन, अच्छा सेंट्रल कॉन्कॉर्ड वाले में चलो थोड़ा उस पर भी बोल देते हैं। अब इतना लिया है, 2 मिनट और ले लेंगे, जस्ट 2 मिनट्स प्लीज, है ना? क्योंकि आप कहेंगे स्फीयर तो आप समझते ही है ना। तो द नेक्स्ट केस इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मीन्स जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में क्या मिल चुका है अपने को? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में 2f बाई z, तो f0, g0, h0, u0, v0, w0 और d अगर आप LHS में कंसीडर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, तो उसको -1 और लाइक मैग्नीट्यूड वाइज यू कैन रिप्रेजेंट दैट। तो इन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो आज का हमारा गेम था, जिस पर आज हम इतना फूले नहीं समा रहे थे, क्या उसका मतलब समझ आया? तो दिस इज, अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमें डेमोन्स्ट्रेशन पे एक अलग लेक्चर लेना ही है कि हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट कैसा, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड कैसा दिखता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 सीट्स कैसा दिखता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन में वो हम करेंगे ही, क्योंकि उसका एक अलग से लेक्चर रखना पड़ेगा। हियर फॉर द टाइम बीइंग आई एम इंटरेस्टेड कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या क्या खेल खिलाता है। तो अभी बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इट इज एलिप्स। अगर एक और आ जाता है तो इसी को बोल देते हैं एलिप्सॉइड, ठीक है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2z, बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप पैराबोला। तो हियर इट इज पैराबोलॉइड। सिंस दिस इज
प्लस वाला साइन. सो इफ दिस कम्स आउट टू बी like this, so this is called paraboloid, elliptic paraboloid. Okay, this is elliptic paraboloid and this is hyperbolic paraboloid. Similarly, we can have hyperboloids as well. So like this we can have, or like this we can have. Check, here only one negative term, here two negative terms. So hyperboloid of one seat, hyperboloid of two seats. But again, I'm saying to demonstrate this, we will have another decoding concept. But for the time being, we are stopping ourselves here. So if you say कि सर आज हमने किया क्या, तो हमने खेला है गेम कि ax² प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर plus 2f by z plus 2zx plus 2hx by plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. This is called the general equation of second degree, and under what condition it represents a pair of planes. Under what condition? It may be a sphere, it may be a cone. Cone के अंडर में what conditions? Under what condition it may go for central conicoids. Believe me, पूरा का पूरा discussion was concentrated over the CSE and forest services. It is nothing like, हाँ, many of you may feel कि सर ये proof type का वो चीज़ें नहीं पूछता है, तो मेरे ऊपर कोई लांछन, कोई उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा PY की उसका नेचर समझें. आंसर्स पर याद मत कीजिए, ये समझिए कि थिंकिंग प्रोसेस क्या चाहिए होती है, अप्रोच क्या चाहिए होती है. तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो मैंने आपको प्रूफ कराए वो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ रहा है, पर अगर आपने ये प्रूफ करना सीख लिया, याद करने की बात नहीं, अगर सीख लिया तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का बैंड बजाने में महारत हासिल हो जाएगी आपको. So it's enough from my side. I hope you have enjoyed this show. Don't forget to share your views or suggestions or the appreciations. Definitely I'm eagerly waiting for your reviews. So it's good luck from my side. If your time is wasted, I'm sorry, but it's good luck from my side. ठीक है, take care, keep learning, keep smiling everyone.